بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزو، آپ لوگ کیسے ہوں؟ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور خداوند قدوس سے آپ سب کی خیریت کی امید چاہتی ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری فل ویڈیو دیکھیے گا، اور آپ لوگ جس طرح سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح کے سپورٹ کرتے رہیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ سر میں چور نہیں ہوں، میں نے بہت مجبوری میں یہ پیسے چوری کیے تھے۔ میں شادی کے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر نشئی تھا جو نشے کی حالت میں ہی مر گیا تھا۔ اب میرا ایک بیٹا ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے پورے 5 لاکھ ہسپتال میں جمع کروانے تھے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ خدا کے لیے یہ پیسے مجھے دے دیں۔ وہ مینیجر کے پاؤں پکڑے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، لیکن مینیجر کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے مالک کے کمرے میں لے گیا، لیکن مالک پر نظر پڑتے ہی اس کا جسم پتھر کا ہو گیا، کیونکہ وہی تو اس کا نشئی شوہر۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے معصوم بیٹے کو گود میں اٹھائے شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کی ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن بازوؤں میں تھاما ہوا وہ ننھا وجود اس کے حوصلے کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ بچہ بے سدھ تھا، سانسیں مدھم۔ وہ کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی ہسپتال کے بڑے سے گیٹ کو، جس سے گزر کر تنہا اندر جانے کی ہمت جٹا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا میرے لال کو۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور لمبا سانس لے کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بالآخر اندر داخل ہوئی۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر اس چادر تلے اس کا بھرپور جوان جسم زمانے کی نظروں سے چھپ سا گیا۔ تاڑتی نظروں کے مفہوم کو ایک عورت سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ وقت ان باتوں پر دھیان دینے کا نہیں تھا۔ وہ ان سب نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ کانپتی ہوئی کاؤنٹر تک پہنچی۔ پلیز میرا بیٹا دیکھ لیں۔ مگر نرس نے ایک لمبی سی بانسی لی اور سخت آواز میں بڑبڑائی، بیٹھ جاؤ بی بی، شور نہیں کرو، نمبر پر بلا لیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ اس کے بچے پر توجہ دینے والا کوئی نہیں تھا، البتہ وہ سراپے حسن تھی اور بالکل تنہا تھی، جیسے کئی آنکھیں پلٹ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ مارے گھبراہٹ کے اس نے نقاب کیا ہٹایا کہ اس کے بغیر میک اپ کے خوبصورت چہرے پر گلابی ہونٹ اور ہرنی جیسی سبز آنکھوں میں ڈر، پریشانی اور تھکن دیکھنے کے باوجود پاس سے گزرنے والے حیران رہ جاتے۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے ہاسپٹل آئی تھی کیونکہ یہ اس کے گھر کے نزدیک تھا، اور اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ اس نے بچے کے وجود کو اپنی چھاتی سے اور قریب کر لیا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑی۔ اس کے قدم دوبارہ حرکت میں آئے۔ کوئی ڈاکٹر ہے؟ خدا کے لیے، میرا بچہ سانس نہیں لے رہا۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس کا شوہر سن کر ایک ڈاکٹر کا سر اٹھا، سفید کوٹ، گلے میں اسٹیتھوسکوپ، ماتھے پر ہلکی سی شکن۔ وہ پہلے دور سے اسے دیکھ رہا تھا، اب نزدیک آ کر انایا کو غور سے دیکھنے لگا۔ چادر کے اندر سے اس کا بھرا بھرا نوخیز جسم تو نمایاں تھا ہی، مگر تیز چلنے کی وجہ سے چادر کے اندر اس کے سینے کا اتار چڑھاؤ، پسینے سے بھیگے گال اور اس کے گلابی ہونٹوں کی کپ کپاہٹ پر ڈاکٹر کی بھوری آنکھیں جم سی گئی تھیں۔ محترمہ، اپنے عقب سے ایک آواز آئی تو وہ فوراً اس طرف پلٹی۔ سامنے ایک اونچے لمبے قد کا مرد کھڑا تھا، سفید کوٹ سے ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ میں بچوں کا سینئر ڈاکٹر ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ مگر اس کی آنکھیں کسی بھیڑیے کی طرح تیز تھیں۔ انایا نے یکدم نظریں چرا لیں، پھر وہ مڑا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنی گردن موڑ کر انایا کی طرف جب دیکھا تو جانے کیوں انایا کو اپنے پورے بدن پر چیونٹیاں سی دوڑتی محسوس ہوئیں، لیکن ہائی یہ ممتا کی مجبوری، کیا نہ کرتی، اندر داخل ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اس نے دروازہ ایک دم سے بند کر لیا اور بچے کو ٹیبل پر لٹانے کا حکم دیا، جسے بلا چون چراں مانتے ہوئے انایا نے ٹیبل پر ارغمان کو لٹا دیا۔ وہ فکر مندی سے اس کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بچے کا چیک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ
वो अनाया को भी कुन अखियों से देखने लगा। अनाया को उस डॉक्टर की आंखों की तपिश अपने चेहरे और जिस्म पर महसूस होते ही उसने अपनी चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। डॉक्टर काफी होशियार था, एकदम से संभल गया और फिर बोला, क्या मसला है इसे? वो अटकते अटकते बोली, मैं जब घर गई तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बेसुध पड़ा था। डॉक्टर ने अनाया पर नजरें गाड़ी, जिसका दूधिया रंग, गुलाबी होंठ जो रो रोकर और ज्यादा सुर्ख हो चुके थे, डॉक्टर की जान निकाल रहे थे। उसकी जुबान बेसाख्ता अपने लबों पर फिर गई। वो जितनी देर बोलती रही, डॉक्टर बच्चे की बजाय उसे तकता रहा। उसकी नजरों में छाई हुई गहरी हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी नजरों से ही उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। अनाया ने अपना सर काफी हद तक झुका लिया था ताकि उसकी नजरों का सामना ही ना करना पड़े। अलबत्ता चादर से निकलने वाले उसके माथे के पास से बालों की लिटें उसके खूबसूरत चेहरे पर फैल गईं, लेकिन वो अपने बेटे को तकती जा रही थी। मेरा बेटा, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, उसने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए रुंधे लहजे में कहा। तो डॉक्टर ने एक नजर बच्चे पर डाली और फिर नजरें फौरन अनाया के चेहरे पर मजबूर कर लीं। ये तुम्हारा बच्चा है? वो हैरत से बोला, तुम तो शादीशुदा ही नहीं लगती, खुद बच्ची हो अभी। अनाया का वजूद थरथराया। वो लम्हे भर के लिए साकित हो गई। क्या उम्र है तुम्हारी? डॉक्टर उसे पुरशौक नजरों से देखते हुए बोला, 19 साल की हूँ मैं। मेरा बेटा है ये, प्लीज इसके बारे में बताइए ना, इसे क्या हुआ है? उसकी आंखों में उम्मीद और बेबसी थी। 19 साल, वो जेरे लब बुड़बड़ाया, अभी तो बहुत कम सिन हो, इतनी जल्दी शादी का शौक क्यों चढ़ा था? उसकी निगाहें अनाया की चादर के किनारे से उसके गले की तरफ सिरक गईं, जहां पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। अनाया उसकी नजरों का अपने बदन के गिर्द तवाफ देखकर सहम सी गई। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखें, खुदा के लिए, ये ठीक तो हो जाएगा ना? वो गिड़गिड़ाई तो डॉक्टर ने सर हिलाया जैसे बेजार हो, मगर बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया। दिल की धड़कन चेक की। इसे दाखिल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वह अस्पताल के खर्चे उठाती। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर डॉक्टर ने नरमी से पूछा, मैं इसे एडमिट कर रहा हूँ अभी से। तो वो अपने खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेरते हुए बोली, इसके एडमिशन और दवाइयों का कितना खर्चा होगा? तो डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा शोहर कहाँ है? क्या वो भी साथ आया है? शोहर की बात पर अनाया को ऐसे लगा जैसे उसका दिल ही चीर दिया गया हो। वो नमनाक लहजे में बोली, उनकी डेथ हो गई है। उसकी आवाज कांप गई और आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारे साथ कौन आया है? तो वो एकदम से बोली, मैं अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर के लबों पर एक इंतहाई पुरइसरार से मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो तुम बेवा हो और ऊपर से अकेली भी हो। उसके लहजे में अजीब सी खनक थी, जिसे महसूस करके अनाया ने उसके चेहरे की तरफ देखा। तन्हाई भी नेमत होती है, इंसान जो चाहे जब चाहे आजादी के साथ कर सकता है, वरना खानदान और रिश्ते तो सिर्फ पाँव की बेड़ियां होते हैं। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वो उसके बिल्कुल मुकाबिल आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर आई हुई बालों की लिट को अपने हाथों से एक तरफ करके उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। तो अनाया एकदम से घबराकर पीछे हटी, मगर फिर बच्चे की हालत देखकर रुक गई। प्लीज डॉक्टर, मेरा बच्चा, वो इल्तिजाया लहजे में बोली, मेरा नाम जहांगीर है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरा नाम पुकारे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक हो जाएगा तुम्हारा बेटा। उसने मखमूर लहजे में एक गहरा सांस लिया, मगर एक शर्त पर। अनाया की रूह कांप गई। वो तो उसके लबो लहजे से ही परेशान थी। शर्त सुनकर सहम से गई। शर्त? उसकी आंखों में बेयकीनी थी। डॉक्टर उसके करीब हुआ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अनाया का जिस्म लरस गया। क्या? कैसी बात? डॉक्टर ने अनाया की थोड़ी पकड़ी। अपनी हर रात मेरे नाम कर दो। अस्पताल के पास ही मेरा फ्लैट है, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बेटा यहाँ पर दाखिल कर लेता हूँ। 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। यहाँ तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर तुम्हारा बेटा भी जिंदा रहेगा और तुम भी चैन से जी सकोगी। अनाया ने बच्चे को सीने से और करीब कर लिया। नहीं, खुदा के लिए, उसकी आवाज में कर्ब था।
डॉक्टर ने उसका रद्दे अमल देखकर अपने कंधे उचकाए। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, बच्चे की सांसें कमजोर हो रही हैं। ये प्राइवेट अस्पताल है बीबी, सरकारी अस्पताल वाले तो शायद तुम्हारे बच्चे को लेंगे भी नहीं, और अगर ले भी लिया तो उसका केस खराब कर देंगे, जबकि हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें हैं। ये 2 दिन में भला चंगा हो जाएगा और तुम्हारा टका भी नहीं लगेगा। अब सोच लो तुमने क्या करना है। मेरी बाहों में आना है या फिर अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपया दाखिला फीस जमा करवानी है। 1 लाख। उसकी जुबान थरथरा सी गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेबसी से इधर उधर देखने लगी। अस्पताल की दीवारें, चीखते मरीज, शोरो गुल, मगर कोई नहीं था जो उसे बचा सके। डॉक्टर अब हाथ सीने पर बांधे उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जैसे दरिंदा अपने शिकार को मुकम्मल गिरफ्त में ले चुका हो। सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है। अनाया का दिल चीख चीख कर जैसे मदद मांग रहा था। अल्लाह, उसने आंखें बंद कर ली और आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा, हाँ या ना। जो ही डॉक्टर ने अनाया का हाथ पकड़ा, उसका वजूद झटक सा गया, जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे छू लिया हो। उसकी उंगलियों की गिरफ्त अनाया की कलाई पर सख्त हुई, लेकिन अगले ही लम्हे अनाया ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़वाया। उसकी सब्ज आंखों में खौफ की बजाय अब एक अजीब सी जुर्रत झलक रही थी, शायद किरदार की ताकत जो कमजोर से कमजोर औरत को भी फौलाद बना देती है। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए अपनी चादर को और ज्यादा सख्ती से अपने गिर्द लपेटा। उसके होंठ कपकपा रहे थे, दिल सीने में जोरदार धड़क रहा था, लेकिन लहजा मजबूत था। मेरे बेटे को एडमिट करें, मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो पलटी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। डॉक्टर जहांगीर ने एक लम्हे के लिए हैरत से उसे जाते देखा, फिर इस्तज़ाया हंसी उसके लबों पर फैल गई। वो जानता था कि मरकर भी वो इतनी बड़ी रकम पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपनी शातिर फितरत से वो ये बात बहुत अच्छे से जान गया था कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, लेकिन चूंकि बेहद हसीन है इसलिए उसका दिल आ गया था। लेकिन अनाया की आंखों के सामने अब सिर्फ अपने बेटे की सांसें ही नहीं थीं, बल्कि अब कदम कदम पर भेड़िए भी थे जो उसके जिस्म को नोचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। और वो नहीं चाहती थी कि उसकी जरा जरा सी ये कमजोरियां उन दरिंदों के हाथ में आ जाएं और वो उसके जिस्म पर अपने दांत तेज करते फिरें। ये तो इब्तिदा है, न जाने जिंदगी की कितनी बड़ी और तवील रात उसे यूं ही तन तन्हा अपने मसाइल से लड़ते हुए गुजारनी है। लिहाजा ये जंग वो किसी भी कीमत पर लड़ेगी, मगर कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। ये तहैया करके वो अस्पताल के बरामदे से बाहर निकली। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। अस्पताल के अहाते के बाद एक तवील सुनसान सड़क थी, जिस पर एक एक करके चंद हैवी बाइक्स और गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजर जाती थीं। उन गाड़ियों की रोशनी में अनाया की आंखें चुंधिया जाती, मगर वो रुकी नहीं। वो कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चलती जा रही थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और अंधेरे की ये खासियत होती है कि अगर आप रो भी रहे हों तो अपने आंसू भी दिखाई नहीं देते। वो मुसलसल अपने बहते हुए आंसुओं के साथ चलती जा रही थी। ये वो आंसू थे जो किसी के सामने बहाने का वक्त नहीं था। अंधेरे ने उसकी पर्दादारी कर दी थी। वो दिल में मुसलसल एक ही दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। मैं उसकी सांसों की कीमत अपनी इज्जत से नहीं दूंगी। तू मुझे अपने फैसले पर कायम रखना। उसने दिल को मजबूत किया। उसके पैरों में छाले थे, जूते पुराने और फटे हुए थे, लेकिन वो दौड़ने लगी। सिर्फ एक उम्मीद थी, अरहम खानजादा की हवेली, वही अरहम खानजादा जो उसका मालिक था, जिसके घर में वो एक नौकरानी की हैसियत से काम करती थी। उसका दिल लरस गया, लेकिन फिर ख्याल आया, बेटे की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो तेज तेज सांसें लेती हुई हवेली के बड़े गेट तक पहुंची। गेट के ऊपर लगी छोटी सी खिड़की को उसने जोर से बजाया तो एकदम चौकीदार ने जरा सी खिड़की खोली और फिर उस पर निगाह पड़ते ही उसने फौरन गेट का दरवाजा खोल दिया तो अनाया जल्दी से अंदर आई। अनाया को इस वक्त देखकर चौकीदार बेहद हैरान हो गया। तुम अनाया, रात के इस पहर
اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم تو شام سے پہلے چلی جاتی ہو ہمیشہ، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ انایا نے جلدی سانس درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ بی بی نے بلایا تھا، ضروری کام ہے۔ چوکیدار کے چہرے پر شک کے تاثرات ابھرے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ڈری سہمی سی لڑکی جو ہمیشہ جھکی نگاہوں سے بات کرتی تھی آج اس طرح بے باکی سے اندر جا رہی ہے۔ انایا اندر داخل ہوئی۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے ہر کونے سے وہ واقف تھی، ہر راہداری، ہر کمرہ اسے یاد تھا، لیکن آج وہ ان راہداریوں میں کچھ اور تلاش کرنے آئی تھی۔ اس کے قدم دبے دبے تھے، جیسے زمین پر بچھے قالین اس کی چاپ نہ سن لیں۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ جو ارحام کی سوتیلی ماں تھیں اس وقت نہ صرف اکیلی بلکہ سوئی ہوئی تھیں۔ خوف نے ایک لمحے کو اسے جکڑ لیا، لیکن بیٹے کا چہرہ ذہن میں آتے ہی وہ پھر چل پڑی۔ ارحام خانزادہ کا کمرہ حویلی کے اندرونی حصے میں تھا، جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ادھر دیکھا۔ کمرے کے دروازے پر جاتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھی، ہاتھ دروازے پر رکھا تو اس کی ہتھیلی پسینے میں بھیگ گئی۔ دل جیسے حلق میں اٹک گیا ہو۔ دھڑکنوں کی آواز اتنی اونچی لگ رہی تھی کہ جیسے پوری حویلی میں گونج رہی ہو۔ اس نے ہمت کر کے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے رک کر اندر جھانکا۔ ارحام کا کمرہ خالی تھا۔ وہ شاید آج شہر سے باہر ہے، یہ سوچتے ہی انتہائی احتیاط کے ساتھ دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا بیڈ، دیوار کے ساتھ کتابوں کی شیلف اور دائیں طرف ایک اسٹڈی ٹیبل جس پر کچھ فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس کا مقصد واضح تھا کہ کسی بھی طرح رقم تک پہنچا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ارحام خانزادہ اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں نقد رقم رکھتا تھا۔ یہ مخصوص رقم تھی جو وہ تنخواہوں یا خاص معاملات کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میز تک پہنچی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، پسینے سے بھیگی انگلیاں لکڑی کی ٹھنڈی سطح پر پھسل گئیں۔ اس نے ہمت کر کے دراز کھولا۔ پہلا دراز کھولا تو خالی تھا، دوسرا کھولا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا، تیسرا دراز، وہاں ایک بڑی سی فائل کے نیچے لفافے میں بند نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہی ہیں۔ اس نے فوراً لفافہ اٹھایا، لیکن اس کے نیچے رکھے کاغذات اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ وہی قیمتی ڈاکومنٹ تھا جو ارحام کی زندگی کا سب سے اہم راز تھا، اور انایا بے خبر تھی۔ لفافہ اپنے سینے سے لگائے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی، کوئی نہ آئے، کوئی نہ دیکھے۔ وہ دروازے سے باہر نکلی تو اس کے قدم تیز تھے۔ اندھیرے میں راہداری کے ستون اسے دشمن لگنے لگے، کوئی اسے پکڑ نہ لے۔ وہ اب بھاگ رہی تھی۔ حویلی کے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں اسے چند لمحے لگے۔ چوکیدار اونگ رہا تھا۔ اسے بس یہ ڈر تھا کہ اگر چوکیدار اٹھ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھی۔ چوکیدار کو دیکھا جو پکی نیند میں تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی اور اسے آہستگی سے کھولا۔ گیٹ سے ہلکی آواز نکلی تو اس کا دل دہل گیا۔ چوکیدار نے کروٹ لی مگر جاگا نہیں۔ انایا نے شکر کی سانس لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کے سینے سے گیلا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب رکنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اسے ہسپتال پہنچنا تھا کسی بھی قیمت پر، اور اپنے بیٹے کو ہر صورت بچانا تھا۔ یہی سوچ اسے مضبوط کر رہی تھی۔ جو ہی انایا حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موٹی رقم والا لفافہ تھا جسے وہ اپنی جان سمجھ کر سینے سے چمٹائے ہوئے تھی۔ وہ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں تھی اور اندھیرے میں لپٹی سڑک کے کنارے تیز تیز چلنے لگی۔ ایک دم سے اس کے کانوں میں گاڑی کے انجن کی آواز گونجی۔ وہ ٹھٹک گئی، مڑ کر دیکھا، سیاہ رنگ کی جیپ پوری رفتار سے حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارحام خانزادہ! اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بھاگنے لگی۔
लेकिन किस्मत कब किसी कमजोर का साथ देती है। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि हवेली के अंदर कोहराम मच गया और फिर वो आवाज गूंजी जिसने सबको हिलाकर रख दिया, और वो आवाज अरहम खानजादा की थी, जिसकी आवाज की दहशत से सिर्फ हवेली वाले नहीं बल्कि हवेली से बाहर के लोग भी डरते थे। वो धाड़ कर अपने तमाम मुलाजमीन से एक ही सवाल पूछे जा रहा था, किस नई लड़की को काम पर रखा था? अगर रख ही लिया था तो मेरे कमरे में जाने की इजाजत उसको किसने दी थी? वो जी बेगम साहिबा ने उसे कमरों की सफाई का काम दे रखा था। एक मुलाजिम ने डरते डरते जवाब दिया तो अरहम खानजादा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। उसने मेरे कमरे से रकम ही नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स भी चोरी किए हैं। वो धाड़ कर बोला। उसकी आवाज में ऐसा तैश, ऐसा जलाल था कि नौकरों के दिल कांपने लगे। मुझे रकम और डॉक्यूमेंट समेत वो लड़की अपने सामने चाहिए, अभी और इसी वक्त। और तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो कि अगर तुम में से कोई भी नाकाम हुआ और आधे घंटे के अंदर अंदर वो लड़की मेरे सामने ना हुई तो तुम लोग अपना अंजाम सोच लेना। अब गुम करो अपनी शक्ल। ये कहकर उसने कमर मोड़ ली तो उसकी बात खत्म होते ही मुलाजिम बाहर की तरफ दौड़े। नौकरों को मालूम था कि अगर वो लड़की ना मिली तो उनकी खैर नहीं, और अनाया वो तो किसी पाताल में भी चली जाती। अरहम खानजादा उसे निकाल लाता। अरहम खानजादा की हवेली में कोई चूना लगा दे, आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया? उसने एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारा। चंद ही लम्हे में हवेली के मुलाजमों ने उसका सुराग लगा लिया। वो दूर सड़क पर तेजी से भाग रही थी। वो रही। किसी ने चीख कर कहा। दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से जा लिया। उसके कदम जमीन से उखड़ गए। छोड़ दो खुदा के वास्ते, वो चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज रात की तारीकी में डूब गई। दो मुलाजमों ने उसे बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए वापस ले जाने लगे। उसके कपड़े मट्टी से लथपथ हो गए। वो तड़प रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मगर उनके चेहरों पर सख्ती और आंखों में वहशत थी। उन्हें मालूम था कि अगर अनाया न पहुंची तो अरहम उनकी खाल उतार देगा। उन्होंने उसे जबरदस्ती जीप में फेंक दिया। वो लिफाफा जिसमें रकम थी अब भी उसके हाथ में था। उसने अपने सीने से चिमटा रखा था जैसे वो उसके बच्चे की जिंदगी की कुंजी हो। जीप तेजी से दौड़ी और अनाया फिर उसी हवेली के दरवाजे पर ले जाई गई जहां से वो अभी बचकर भागी थी, मगर अब की बार वो मुजरिम की तरह लाई गई थी। चेहरे पर मट्टी, कपड़े फटे हुए, आंखों में आंसू और दिल में मौत का खौफ था। मुलाजमों ने उसे गाड़ी से खींचकर निकाला और एक झटके से जमीन पर फेंक दिया। चल उठ। उन्होंने उसे बाजू से पकड़कर अरहम खानजादा के दीवान खाने में ले जाकर धक्का दिया। अनाया लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरी। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया तो वो घबराकर रोने लगी। उसे अपने बच्चे की याद शिद्दत से आने लगी। न जाने वो किस हाल में होगा। वो उसे बिल्कुल तन तनहा हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर रकम का इंतजाम करने निकली थी, मगर पकड़ी गई। अब उसके होठों पर सिर्फ एक ही दुआ मचल रही थी, या अल्लाह मुझ पर रहम कर, तू जानता है मैं चोर नहीं, ये सब मैंने हालत मजबूरी में किया है, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इस ख्याल ने उसे रुला दिया। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक उसे दरवाजे के पास कदमों की चाप की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला तो वो उछल पड़ी। आने वाला पूरी तमतराक के साथ अंदर दाखिल हुआ तो वो सहम कर दीवार के साथ जा लगी और अपनी आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों से वो आने वाले कदमों की चाप सुनने लगी और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। अरहम खानजादा ने एक धान पान सी लड़की पर निगाह डाली जो गठरी सी बनी दीवार के साथ आंखें बंद किए बैठी थी। उसका बदन हल्के हल्के से कांप रहा था। वो जितने गुस्से में अंदर दाखिल हुआ था, अब न जाने उसका गुस्सा कम क्यों हो गया। वो अनाया के सामने आकर रुका और फिर कहर आलूद नजरों से वो उसकी तरफ देखने लगा, जो उसको करीब महसूस करके अपनी नजरें झुकाए जमीन पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला, तो तुम हो वो चोरनी जिसने इस हवेली की अच्छी नमक हलाली की है। जिस थाली में खाती हो उसी थाली में छेद कर डाली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसके मुलाजिमीन ये बात जानते थे कि वो औरत जात पर हाथ नहीं उठाता, वरना अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो उसकी खैर ना होती। अनाया के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए बोली,
میں نے زندگی میں پہلی بار چوری کی ہے، میں مجبور تھی، میرے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی سسکیاں اور فریاد اس سخت مزاج پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ ارحام کی آنکھوں میں اس کے لیے ذرا بھر نرمی نہ اتری۔ اس کے ملازم خاص اس کے پاس ہی کھڑے تھے، وہ جانتے تھے کہ ارحام کا ضبط ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ لاوا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ عنایا بار بار دہرا رہی تھی، یہ پیسے پلیز مجھے لے جانے دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اس کی آواز میں فریاد تھی، آنکھوں میں امید۔ لیکن ارحم خانزادہ نے دھیرے سے سانس کھینچی۔ اگر تمہیں اتنی ہی ضرورت تھی تو تم مجھ سے مانگ لیتی۔ اس کا لہجہ برف جیسا تھا۔ میرے ہی گھر میں رہ کر میرے ہی والٹ سے چوری، تمہیں اتنی عبرتناک سزا دوں گا، اس حویلی کا ہر ملازم اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ عنایا نے روتے ہوئے جب سر اٹھایا تو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، ارحام خانزادہ تھا جس کا نکاح اس کے ساتھ طے تھا، مگر ارحام کے والد شمریز خانزادہ کو یہ شادی منظور نہ تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کاروباری خاندان میں کرنا چاہتے تھے، مگر ارحام کو عنایا بھاگ گئی جو اس کی کلاس فیلو تھی مگر غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب ارحام نہ مانا تو انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے عنایا کے والد کو ایک تکڑی رقم دی اور ان سے کہا کہ نکاح سے پہلے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے نکل جائیں۔ عنایا کے والد لالچ میں آ گئے۔ وہ نکاح والے دن ہی عنایا کو لے کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ دیا، اور پھر عنایا کی شادی انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ زبردستی کر دی جو نشئی اور جواری تھا۔ عنایا اپنی قسمت کے اس فیصلے پر بہت روئی، لیکن پھر صبر کر لیا۔ جب وہ امید سے ہوئی تو اسے لگا کہ جیسے اس کے زخموں پر مرہم سا رکھ دیا گیا ہو، مگر ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا اور وہ ایک ننھے سے بیٹے کی ماں بن گئی تو کچھ دن بعد ہی اس کا شوہر روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کے والد بھی نشے کے عادی تھے۔ ایک دن نشے کی زیادہ ڈوز لینے سے ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ اب عنایا چند ماہ کے بچے کے ساتھ زندگی کی بہت بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب بات فاقے تک آئی تو اس نے گھر سے نکل کر کام کاج ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اس کی جوانی اور خوبصورتی نے اسے مشکلات سے دو چار کر ڈالا۔ لیکن یہ پہلی حویلی تھی جہاں وہ سال بھر ٹک کر عزت سے کام کر رہی تھی۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ کسی طرح سے اپنے بچے کی اچھی پرورش کر لے۔ ارحام خانزادہ اس کی دنیا میں اب ایک دھندلاہٹ بھری یاد کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن زندگی اسے پھر سے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ارحام خانزادہ ایک بار پھر سے اس کے عین سامنے کھڑا تھا، مگر اس حالت میں کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اپنی محبت کے اس انجام پر اس کی سانسیں رک گئیں، آنسو تھم گئے تو دوسری طرف ارحام اپنی محبت کو سامنے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اپنے سامنے اس بے وفا کو دیکھ رہا ہے جس نے کالج کے اندر اس سے ٹائم پاس عشق کیا اور شادی کسی اور سے، اور یہ بات بھی اس کے والد نے اسے بتائی تو اسے یقین نہ آیا۔ تو انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس ارحام خانزادہ کے سامنے رکھے۔ جب ارحام خانزادہ نے وہ ڈاکومنٹس پڑھے تو اسے شدید دکھ ہوا، کیونکہ عنایا کے والد نے اس شادی کے لیے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا، اور جب ارحام خانزادہ کے والد نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا تو وہ نکاح والے دن اپنی بیٹی کو لے کر یہ شہری چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا جس پر ارحام کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کے والد نے جب پکے ثبوت اس کے سامنے رکھے تو اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ وہ عنایا کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب اس کے والد نے اسے سمجھایا کہ جیسا باپ ہے ویسے ہی بیٹی، اگر اس کی بیٹی تم سے واقعی محبت کرتی تو کبھی بھی اپنے باپ کی باتوں میں نہ آتی۔ یقیناً باپ بیٹی ملے ہوئے تھے اور نہ جانے اس سے پہلے بھی کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے لوٹا ہوگا، لیکن ارحام کو صبر نہ آیا۔ وہ کافی عرصے تک عنایا کو ڈھونڈتا رہا، لیکن اس دوران اسے شادی کا خیال بھول کر بھی نہ آیا۔
अनाया की याद उसके दिए जख्म कदरे कम हुए ही थे कि अचानक वो उसे दोबारा नजर आई तो उसे लगा कि जैसे उसका पूरा वजूद ही जंजीरों की नजर हो गया हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने टूटकर चाहा था और आज वो उसके सामने एक काम करने वाली मासी के साथ साथ एक चोरनी की हैसियत से खड़ी थी। उसकी आंखों की पुतलियां सुकड़ सी गईं और वो एकदम घुड़ाकर बोला, तुम अनाया रहमान, तुम। उसकी आवाज में नफरत ही नफरत थी। ऐन निकाह के दिन भाग गई थी ना तुम। उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी और बढ़ गई। मेरा एतबार तोड़कर मुझे जलील करके तुम जान मांगती अरहाम से, मगर अफसोस कि मेरी मोहब्बत की कीमत तुमने सिर्फ 1 करोड़ लगाई थी, सिर्फ 1 करोड़। बड़ी सस्ती मोहब्बत थी तुम्हारी। वो राया तो वो उसे बेबसी से देखने लगी। उसकी आंखें भीग चुकी थीं और होंठ लरज रहे थे। अरहाम दांत पीसते हुए बोला, देखो जरा खुद को, आज फिर तुम मेरे ही दरवाजे पर खड़ी हो, लेकिन एक चोरनी की हैसियत से। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? आज अगर तुम मेरे साथ होती तो दौलत तुम्हारे कदमों तले होती, मगर तुमने और तुम्हारे लालची बाप ने अंडे देने वाली मुर्गी को अपने लालच की कुंद छुरी से ज़िबा कर डाला और इस लालच ने तुम्हें कहाँ लाकर पटक दिया है। उसके अल्फाज ने अनाया का वजूद लरज दिया। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में अनाया? वो झुककर उसके करीब हुआ। क्या कमी थी? उसकी सांसों की तपिश अनाया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर अरहाम ने उसकी पेशकदमी रोक दी तो उसकी आंखें झुक गईं, होठों पर कपकपाहट तेज हो गई। अरहाम, वो सिर्फ इतना कह सकी, लेकिन अरहाम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उसने अनाया की कलाई को अपनी फौलादी गिरफ्त में लेकर इतनी जोर से मोड़ा कि वो सिसक पड़ी। दर्द से उसका पूरा वजूद हिल गया। वो सिसक पड़ी। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अरहाम के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। दर्द? वो गुर्राया, तुम जानती हो दर्द का मतलब क्या होता है? वो आंखों में सुलगती हुई नफरत लिए बोला, तुम जैसे लालची लोग सिर्फ दर्द देना जानते हैं, सहना नहीं। उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई तो वो तड़प गई। उसने अपना एक हाथ अरहाम के सीने पर रखा। उसके चेहरे पर अजब बेबसी सी उतर आई। उसने एक झटके से उसकी कलाई छोड़ी तो वो अपनी कलाई को अपने हाथ से सहलाने लगी। क्यों लौटी हो मेरे सामने? अरहाम का लहजा फिर सख्त हुआ। क्यों वापस आई हो? वो गरजदार आवाज में बोला। अनाया ने बामुश्किल अपनी नजरें उठाई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अरहाम। मैं नहीं जानती थी कि यह हवेली आपकी है, वरना मैं अपनी शक्ल आपको कभी ना दिखाती। लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं बेवफा नहीं हूँ। निकाह से 1 दिन पहले आपके वालिद हमारे घर आए और उन्होंने मुझे आपकी मोहब्बत से दस्तबरदार होने के लिए 1 करोड़ की ऑफर की, लेकिन मैं ना मानी। मगर मेरे अब्बा ने आपके वालिद की ऑफर को कबूल कर लिया और ऐन निकाह वाले दिन वो मुझे जबरदस्ती शहर से दूर एक गांव ले गए, जहां उन्होंने अपने भाई के बेटे के साथ मेरा जबरदस्ती निकाह कर दिया। वो 1 करोड़ की रकम कुछ तो मेरे शोहर ने जुए में उड़ा दी और कुछ अब्बा ने अपने नशे में। फिर ये दोनों मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन उस वक्त जब मेरी जिंदगी के तमाम रंग फीके हो चुके थे, इस शादी में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन जब अर्गमान मेरी गोद में आया तो मुझे लगा इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि मैं इसे सजा देती फिरूं। लिहाजा मैंने उसकी खातिर दोबारा से जीने की कोशिश की। मुख्तलिफ नौकरियां की, मगर 2-4 माह से ज्यादा मैं किसी एक जगह टिक कर जॉब नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मैं किसी से क्या गिला करती। फिर मुझे आपकी हवेली में काम करने का मौका मिला, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं नमक हराम नहीं हूँ, ना ही चोर हूँ। मैंने ये कदम इंतहाई मजबूरी में उठाया है। मेरा बेटा, वो हिचकियों में बोली, मर रहा है और अगर मैंने 1 लाख रुपए का इंतजाम ना किया तो वो मर जाएगा। अरहम खानजादा उसकी बातें सुनकर शौक की हालत में खड़ा था। उसे एकदम से याद आया कि 1 करोड़ की रकम ऐन उसके निकाह से 1 दिन पहले निकाली गई थी, तो गोया ये डॉक्यूमेंट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अनाया सच कह रही है। उसने अनाया की छाती से लगे हुए डॉक्यूमेंट और रकम को देखकर सोचा और गहरी सांस ली।
फिर वो उसे चंद लम्हे घूरता रहा। उसकी आंखों में कोई जज्बा छुपा था जो खुद अरहाम भी समझ नहीं पा रहा था। वो तेजी से पलटा और कमरे के वस्त में टहलने लगा। उसके हाथ बार बार मुट्ठियों में बंद हो रहे थे, जैसे खुद को कायल करने की कोशिश कर रहा हो। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था कि अब क्या होगा। फिर अचानक अरहाम रुका। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वो आहिस्ता से बोला, मगर लहजा फिर भी सख्त था। तुम्हें लगता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम बाकी है। अनाया खामोश रही। उसकी पलकें भीग चुकी थीं। फिर उसने धीरे से सर हिलाया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे की जिंदगी चाहिए। मैं आपकी नजरों से दूर चली जाऊंगी। उसकी आवाज में वही माँ की इल्तजा थी जो किसी भी दुश्मन का दिल मोम कर दे। मगर अरहाम खानजादा का दिल, वो तो बरसों पहले ही पत्थर बन चुका था। अरहाम अनाया के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि अनाया की सांस रुकने लगी। वो चादर से बाहर निकले बालों की लिट को देख रहा था जो उसके गाल को छू रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और वो लिट हटाने लगा। अनाया का जिस्म कांप गया, उसका दिल जोर से धड़का। तुम अब कोशिश भी करो तो मुझसे दूर नहीं जा सकोगी। अरहाम का लहजा धीमी सरगोशी में बदला। बहुत भाग लिया तुमने, अब कुछ अरसा मेरी कैद में रहो। अनाया उसकी बात सुनकर तड़प सी गई, लेकिन अरहाम खानजादा उस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो उसे छोड़कर वहां से जाने लगा तो अनाया उसके पीछे दौड़ी। खुदा के लिए अरहाम, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरा बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में है, वो मर जाएगा। अगर बर वक्त पैसों का इंतजाम ना हुआ तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन अरहाम किसी संगदिल महबूब की तरह वहां से चला गया। जबकि वो ऊंचा ऊंचा रोते हुए दरवाजे को बार बार दस्तक देने लगी। उसका दिल अपने बेटे अरगमान के लिए तड़पने लगा। हवेली के वसीओ अरीज सहन में मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं झींगरों की आवाज और बादलों की धीमी धीमी घड़घड़ाहट अब तेज होने लगी थी। अरहाम खानजादा अपने दीवान खाने में बैठा था, हाथ की मुट्ठियों को बार बार खोल और बंद कर रहा था। बेआरामी से उसके चेहरे पर थकन थी और जहन में सोचों का एक तूफान बरपा था। उसने अनाया को हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया था। कमरे की कुंडी लगाकर चाबी खुद अपनी जेब में रख ली थी, लेकिन अब उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो उस लम्हे को याद कर रहा था जब वो जमीन पर सिसक रही थी, अपनी सफाई पेश कर रही थी। उसकी हिरनी जैसी सब्ज आंखें जो हमेशा उसे मशहूर करती थीं, आज आंसुओं में डूबी थीं। क्यों लौटी हो मेरी जिंदगी में, ये सवाल वो खुद से बार बार कर रहा था। आखिरकार वो अपने करीब खड़े मुलाजिम खास जब्बार खान को देखकर बोला, जब्बार इधर आओ। जब्बार जो उसके बाद के वक्तों से उसके साथ था, झुककर अदब से बोला, जी खानजादा साहब। अरहाम की नजरें धुंधला गईं, जैसे वो माजी में झांक रहा हो। एक बात बताओ, क्या ये सच है कि मेरे बाबा ने अनाया के वालिद को 1 करोड़ रुपए दिए थे? इस सवाल पर जब्बार की आंखें झुक गईं। चंद लम्हे वो खामोश रहा, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर धीरे से बोला, साहब, अब बड़े साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके राज खोलना अच्छा नहीं लगता। अरहाम ने मुठ्ठियां भींच ली। सच जानना चाहता हूँ जब्बार। उसके लहजे में वही हुक्म था जो कभी उसके वालिद के लहजे में होता था। जब्बार ने सांस भरी। जी, ये सच है। बड़े साहब ने 1 करोड़ रुपए अनाया के वालिद को दिए थे। कहा था किसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। अरहाम की सांस रुक गई। और अनाया, वो तो नहीं मान रही थी साहब, मगर उसके वालिद मान गए। फिर सुनने में आया कि उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी और बड़े साहब मुतमईन हो गए कि अब वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुकी है। जब्बार की आवाज में शर्मिंदगी सी थी, लेकिन अरहाम का दिल एक बार फिर जख्म खोरदा सा हो गया था। वो अपनी जगह से उठा और तेजी से कमरे में टहलने लगा। बादल अब जोर से गरज रहे थे, बिजली गूंदी और खिड़की से अंदर रोशनी की एक लहर सी दाखिल हुई तो वो चौंक कर रुक गया। एक लम्हा, एक मंजर उसके जहन में बिजली की तरह चमका। कॉलेज का वो दिन जब इसी तरह बादल गरजे थे तो अनाया ने डर के मारे उसके बाजू को पकड़ लिया। वो हंसा था खुलकर, डरपोक कहीं की। वो लम्हा उसे आज भी याद था और आज वही डरपोक लड़की उसकी हवेली में कैद थी और बादल फिर जोर से गरज रहे थे। एक बेचैनी उसके वजूद में दौड़ गई। वो तेजी से कमरे से निकला, लंबे डग भरता सीढ़ियां फलांगता हुआ अंदरूनी हिस्से की तरफ गया। उसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था। वो डरती है, वो आज भी सहमी होगी। वो कमरे के सामने रुका, चाबी निकाली और दरवाजा खोला।
कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से बिजली की कड़क से कमरा रोशन हो जाता। उसने लाइट जलाई तो ये देखकर उसका दिल धक से रह गया कि जमीन पर अनाया बेसुध पड़ी थी। चादर उसके चेहरे से हट गई थी, उसका रंग सफेद, होंठ नीले, आंखें बंद थीं। अरहम का दिल जोर से धड़का। अनाया, वो लपका। उसने झुककर उसे गोद में उठा लिया। उसका जिस्म हल्का, जैसे जान ही ना हो। वो फौरन बाहर निकला, मुलाजमों की तरफ गुस्से से देखा, फौरन पानी लाओ, लेकिन फिर खुद ही उसे लिए खुली हवा में आ गया। बारिश अब तेज हो रही थी। उसने पानी के चंद छींटे उसके चेहरे पर मारी। उसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आया कि उसके गुस्से ने इस नाजुक सी लड़की को कितना दुखी कर डाला। चंद लम्हे गुजरे, अनाया ने आंखें खोल दी तो अरहम के बेचैन दिल को करार सा आ गया। वो पुरजोश नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उनकी नजरें मिली तो बादल एक बार फिर जोर से गरजे। अनाया कांप गई और बेअख्तियार अरहम के सीने से जा लगी। अरहम, तुम आज भी बादल गरजने से डरती हो? हाँ, बहुत। वो अपनी नाक उसके सीने से रगड़ते हुए बोली और फिर एकदम से उससे अलग हो गई। उसके पास चादर नहीं थी, वो नंगे सर बैठी थी और अरहम समझ गया। उसने फौरन अपने कंधे से चादर उतारी और उसके सर पर डाल दी तो अनाया फूट फूट कर रोने लगी। तुम जो सजा देना चाहते हो दे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। उसकी आवाज में एक माँ की फरियाद थी, दिल को चीर देने वाली फरियाद। अरहम के बाजू खुद ब खुद उसे हसार में लेने लगे। वो साकित खड़ा था, फिर उसने दोनों बाजू उसके गिर्द कस लिए। एक गहरी सांस ली। चुप करो अनाया, उसने नरमी से कहा। हम अभी इसी वक्त अस्पताल जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। अनाया की सिसकियां थमी नहीं, वो उसके सीने से लगी रही जैसे वही उसकी वाहिद पनाह हो। अब वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है, अरहम ने आहिस्तगी से कहा। उसका लहजा पहली बार नरम था, जैसे सारी करवाट एक लम्हे को बह गई हो। अनाया ने साकित होकर उसे देखा, आंखों में हैरत, आंसुओं के बीच उम्मीद की चमक। अरहम, वो हकला गई। हाँ अनाया, वो उसे देखता रहा। मैं उसे बचाऊंगा, जैसे मैंने खुद से वादा किया था कि तुम पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। अरहम के लहजे में वही पुराना लम्स था, वो लम्स जो अनाया ने बरसों पहले खो दिया था। वो बेसाख्ता रो दी। उसने आंखें बंद कर ली और एक बार फिर उसके सीने से लग गई। अरहम ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। बादल अब भी गरज रहे थे, लेकिन अनाया के दिल में सुकून उतर रहा था। वो जानती थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अनाया अस्पताल के बड़े गेट से अंदर दाखिल होते ही अरहम खानजादा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो इस्तकबालिया के करीब पहुंची, उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो कुछ लम्हे के लिए सब कुछ भूल गई थी, सिर्फ एक ही ख्याल था, उसका बेटा। वो तेजी से आगे बढ़ी। अरहम ने उसे पुकारा भी, लेकिन वो नहीं रुकी। चंद ही लम्हे में वो उसके कमरे के सामने पहुंच चुकी थी, जहां उसे अपने बेटे को छोड़कर जाना पड़ा था। दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर दाखिल हुई। कमरे की रोशनी मध्यम थी, लेकिन सामने डॉक्टर जहांगीर को देखकर वो चौंकी। वो कुर्सी पर नीम दराज बैठा था, एक हाथ जेब में और दूसरे में किसी रिपोर्ट का पलंदा। जैसे ही उसने अनाया को अंदर आते देखा, उसके चेहरे पर एक मकरूम मुस्कुराहट उभरी, आंखों में खबासत और लबों पर हिकारत। आ गई हो? वो हंसा। क्या हुआ? 1 लाख का बंदोबस्त नहीं कर सकी? मैंने कहा था ना, खामखा वक्त जाया कर रही हो। उसने अपनी कुर्सी सीधी की और अनाया की तरफ इशारा किया। लेकिन देख लो, तुम्हारे बेटे का कितना ख्याल रखा है मैंने। उसकी बात सुनते ही अनाया के जिस्म एक झरझरी दौड़ गई, मगर वो खामोश रही। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी। पूरे 50,000 अपनी जेब से देकर बैठा हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो धीरे से उठा और चंद कदम चलकर अनाया के करीब आया और सरगोशी में बोला, लेकिन तुम भी अगर मेरा ख्याल रखो तो मैं ये सब हिसाब माफ कर दूंगा। अनाया के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि एक सख्त और दबंग आवाज ने कमरे की फिजा चीर डाली। अरहम खानजादा किसी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और कड़े तेवर से डॉक्टर को मुखातिब किया। तुम जैसे गंदे लोग जब इस शोबे में दाखिल होते हैं तो पूरे पेशे को बदनाम कर देते हैं। डॉक्टर जहांगीर घबराकर पीछे हटा। अरहम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शोबा इंतहाई मुकद्दस है, मगर तुम जैसे लोग इसे बदनाम करते हो। एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तुम जैसों की वजह से ये शोबा भी बदनाम हो रहा है। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था, मगर आंखों में शोले भड़क रहे थे। डॉक्टर जहांगीर मिनमिनाया तो ये कह रही थी कि इसका कोई नहीं है,
तो तुम कौन हो? अरहाम ने पल भर जाया किए बगैर आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। उसकी आवाज में लोहे की सख्ती थी, लेकिन तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि मैं अरहाम खानजादा हूँ। उसने डॉक्टर को पीछे धकेला, और ये भी जान लो कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। चंद लम्हे बाद अरहाम के हुक्म पर अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टर जहांगीर को मुअत्तल कर दिया। अरहाम खानजादा के एक हुक्म पर पूरा अमला हरकत में आ चुका था। अरहाम ने अनाया की तरफ देखा। वो अब भी साकित खड़ी थी, आंखों में हैरत, लबों पर थरथराहट। अरहाम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। तुम अब अकेली नहीं हो, बस इतना याद रखो। ये कहकर वो अर्गमान को आईसीयू की तरफ ले गया। बेहतरीन इलाज, माहिर डॉक्टर्स का इंतखाब करके अरहाम ने कोई कसर ना छोड़ी। एक हफ्ते बाद बच्चा मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। हवेली में दाखिल होते वक्त अनाया का दिल किसी अनजाने खौफ और उम्मीद के बीच झूल रहा था, लेकिन जल्दी वो हैरान रह गई जब अरहाम ने उसे बताया कि वो चाहता है निकाह हो, अब और कोई दूरी नहीं। तो उसका दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी में डूब गया। सादगी से सजी महफिल, सफेद फूल और खुशबू से महकता हुआ माहौल, अनाया के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम ना था। निकाह के बाद जब अरहाम उसे लेकर उसके कमरे में आया तो कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। फिर अरहाम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये हाथ जो कल मुझसे छूट गया था, आज फिर थामा है, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। अनाया ने धीरे से पलकें झुका ली। और मैं मरते दम तक साथ निभाऊंगी। अरहाम ने मुस्कुराकर उसकी थोड़ी को ऊपर किया। मुझे तुम पर यकीन था, है और हमेशा रहेगा। बस किस्मत को जरा देर लग गई हमें मिलाने में। अनाया के लब मुस्कुरा दिए। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसे कोई नहीं छीन सकता, न वक्त न हालात। अरहाम ने उसे बाहों में लेकर कहा, अब ये मोहब्बत, ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है और तुम मेरी। अनाया ने सुकून से अपना सर उसके कंधे पर रखा। मोहब्बत मिल चुकी थी, सच्चाई जीत गई थी। अनाया और अरहाम की मोहब्बत के सच्चे रंग ने हर जख्म को भर दिया था। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।